ओके, सो हमारा जो टॉपिक है, इट्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कंप्यूटेबल फंक्शंस। कंप्यूटेबल फंक्शंस इज, हम लोग क्या करते हैं, हमने अभी तक ट्यूरिंग मशीन्स को यूज़ किया है, टू स्टैक पीडीओ को यूज़ किया है, लेकिन हम उससे फंक्शंस भी सॉल्व करा सकते हैं। आपको पता है फंक्शंस हमारे वैसे ही होते हैं जैसे कि हम मैथ्स फंक्शंस होते हैं या फिर हमारे कंप्यूटिंग में फंक्शंस होते हैं। हमारी टर्म्स में फंक्शंस कोई आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके तो किसी ना किसी तरीके से या वैल्यू के साथ या रेफरेंस के साथ वो उनको वापस भी कर देते हैं, राइट? वैसे भी फंक्शन का पर्पस ये होता है कि वो डोमेन से रेंज के ऊपर मैप करते हैं, मैथमेटिकली भी देखा जाए तो। सो हम लोग भी कंप्यूटेबल फंक्शंस में क्या करेंगे, विल एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड कि जी उससे बिलोंग करता है कि नहीं करता। विल एक्चुअली बी डूइंग सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, राइट? लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन, like incrementing by one, like decrementing by one, or by even multiplication, division, mod. So ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हम लोग हमें ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व करने के लिए आने चाहिए। सो जो कंप्यूटेबल फंक्शंस हैं, आज की क्लास जो है इट्स बेस्ड ऑन computable functions. The format is going to be the same. We'll start with very simple basic mathematical functions like incrementing by one or decrementing by one, or adding two numbers or subtracting two numbers, and then we'll move on to doing complex mathematical problems like multiplication, division, mod, and so on, right? इस तरह के हम लोग देखेंगे। सो हमारी जो कंप्यूटिंग है बेसिकली थ्री पार्ट्स में आती है, राइट? वेयर हम लोग एक ही ज़्यादातर डोमेन में काम करते रहे, विच इज़ language acceptance, checking whether a particular string belong to that language. So it was more of a acceptor or more of a recognizer that we were building, and we never tried to come up with the solution such that okay, तो हमने कम किया, like when we looked at Moore and Mealy machines, that was one of the examples when we were actually producing outputs. And last thing is when we were language generation, that I don't think we have looked at it so far, where there's a machine that generates, जिसका काम ही ये है कि to generate words from that language, right? So हम ये तीनों चीजें, now is the time that we need to do all three things from our Turing machines. Will not be restricted to just one part, which was simply the language acceptance, right? Recognizer वाली बात. So this is a good picture. I like it क्योंकि ये बड़ा अच्छे तरीके से it sums up the whole thing, right? So we have always been looking at this acceptor, right? अगर आप लोग इसको देख सकते हैं, which is given certain inputs, it will tell you whether that belong to the language, otherwise it will crash. That has been the standard thing that we've been doing. And if you remember, the Moore and Mealy machines, they were the only machines that would also be giving you the outputs. For certain inputs, they will be giving you outputs, right? And then there's another machine that we have never looked at, though we have discussed that they are, though we have discussed that there has to be a way by which we'll be generating every possible word from the language. But we've still not done it. It's very interesting how to come up with a machine that can automatically generate all the words, right? So we'll also look at it. So for now, we will be we'll be using a Turing machine so that they are also able to give us the outputs, right? Not just yes or no in Boolean, but we want answers like what's the addition of these two numbers, or what's the multiplication of these two numbers, or so on and so forth, right? So that's something that we will be doing. Okay, so I think what I will do is I will want to, you can just go through all of these, simple things yourself. What I would want is I would want to go to actually building those machines. Okay, that's going to be easy. Just give me a minute. I'll just log in from my, from my, other device.
I'm just so sorry that this always happens. Okay, we will begin step by step. Okay, the first function, like I just mentioned, we'll be doing a couple of uh, com computable functions, right? Computable functions वो जिनके आप compute कर सकते हैं, right? So first of all, I will begin by जो हम करते हैं count plus plus, right? We can you can always do the minus minus, नहीं कि increment by one, decrement by one, ठीक है? You can also do add, which is pretty easy. Then you can also do subtract, ठीक है? और मैं इसके साथ साथ जो लास्ट मेरी होगी इस क्लास में वो I will try to solve multiplication, right? Multiplication tricky है, but once you get to know multiplication, you can easily map it for division and taking mod. और अगर टाइम हुआ आज तो शायद ना कवर हो सके, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह we'll also be looking at the square or the square root, both things, okay? So let's begin the first one, which is incrementing by 1. इसमें ये है कि हमारे पास एक because it's a Turing machine, it's not a very sophisticated or high-end machine. It's a machine that works at a very primitive level. So what we assume is, एक तो ये हम assume करेंगे that our machine is infinite from both the ends, ठीक है? दूसरा हम let's say this is the start of the जो भी है हमारा starting marker जैसे हमें कह सकते हैं वो है हमारा, या इसको हटा के हम अगले पे भी डाल सकते हैं. So let's say so इसमें जो हमारी लैंग्वेज होगी जो अल्फाबेट है वो हमारी होगी इट विल बी ऑल वंस, ठीक है? देन वी कैन हैव स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश डाल सकते हैं, लेकिन जो हमारे वट एवर नंबर इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड it shall be represented in unary, right? Unary representation, I'm sure you must have heard of it. Binary means you have 3 letters or 3 numbers that you can use. Unary means that you just have one number. So if you want to write number 3 in unary, you will write like this. You want to write number 10 in unary, you will write, this is how you will write. So all our computable functions that we'll be covering, they will be done in unary, right? So ये हमारा, because it's going to be difficult for us to recognize number 3 and number 7. So you can imagine how primitive, at what primitive level we are doing our work. Okay. Looking at this, I think for you, incrementing by 1 should not be a problem, right? Can anybody give me a hint? How can I do increment by 1 to this input? Yes, any hints? Yes, definitely. So this is very simple. What you need to do is you simply need to, like if this is your starting point, so if this is your starting point, अब तो आप लोगों को idea हो भी गया, you keep on reading and writing the same thing until you hit a first null and you convert that null into a into 1, right? अब इसमें trick थोड़ा सा ये आता है, you can also look at the past papers that I have uploaded, कि आपको जब argument return value करनी पड़ती है तो आपको वापस जाके यहाँ से करनी पड़ती है ताकि उसको पता हो यहाँ से लेके यहाँ तक is actually my answer, right? So computable functions में you should give, जब इनपुट मिल रहा है तो आपको इनपुट को एक प्रॉपर आउटपुट में छोड़ना है. आउटपुट में छोड़ने का मतलब ये द फॉर्म शुड आल्सो बी द सेम और जहां से स्टार्ट करना है दैट विल आल्सो बी द सेम, राइट? इसकी एक मशीन एक हम बना लेते हैं. आई नो फॉर मोस्ट ऑफ अस इज वेरी सिंपल, बट स्टिल आई वुड वांट टू मेक एक्सरसाइज फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम इसकी कर लें. So we start, right? And then what we should read is, if we read a 1, right?
तो आप क्या करेंगे, 1 को 1 से रिप्लेस करेंगे एंड यू मूव टू द राइट, एंड एज लॉन्ग एज यू रीडिंग वंस यू मूव टू द राइट अंटिल यू हिट अ नल, राइट। जैसे ही आपको नल मिले तो आप क्या करें कि यू शुड कन्वर्ट दैट नल टू अ 1 एंड यू मूव टू द लेफ्ट, ठीक है। एंड देन व्हाट यू डू इज, क्योंकि वन टाइम ऑपरेशन है, यू डोंट रियली हैव टू मेक एनी लूप फॉर इट, सो व्हाट यू डू इज एनी वंस दैट यू एनकाउंटर ऑन योर वे बैक, आप वंस को 1 से करते करते लेफ्ट पे करें अंटिल यू हिट अ, लेट्स से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने हैश का बनाया था, रिटर्न रीराइट हैश को हैश से करके यू मूव टू द राइट, सॉरी दिस इज वेयर यू शुड हॉल्ट, राइट। सो ट्यूरिंग मशीन्स का ये है कि आपको उनको हॉल्ट करना पड़ता है। अगर किसी एनी पॉइंट इन टाइम मैंने अगर गलती से कहीं पे एक्सेप्ट कर दिया तो यू शुड करेक्ट इट, और आपको ट्यूरिंग मशीन को हॉल्ट पे ही फिनिश करना है, मतलब दिस इज द एक्सेप्टेंस स्टेट ऑफ अ ट्यूरिंग मशीन, राइट। मुझे तो अपेरेंटली सिंपल लग रहा है, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेते हैं, राइट, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में ना रह जाए। सो लेट्स से दिस इज माय सो व्हाट आई डू इज आई कम टू स्टार्ट, सो मेरा टेप हेड यहाँ पर है, 1 को 1 से रिप्लेस किया, राइट, 1 को 1 से रिप्लेस किया, आगे चले गए, एवरी सक्सेसिव 1 इज रिप्लेस्ड बाय अ 1 अंटिल देयर इज अ नल, राइट। नल को मैंने 1 से रिप्लेस किया, राइट, और उसके बाद फिर मैं यहाँ वापस आई हैश पे, और हैश के राइट साइड पे दैट इज वेयर आई लीव माय कर्सर, ठीक है। सो आप जब रिटर्न वैल्यू अपने फंक्शन में देंगे तो आप उसको कहेंगे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इज द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पे आपको मिलनी चाहिए रिटर्न वैल्यू आपकी, राइट। सो जब हम करते हैं ना काउंट प्लस प्लस, कंप्यूटर साइंस वाले जितना काउंट प्लस प्लस या आई प्लस प्लस यूज करते हैं, आई थिंक शायद ही हम शायद ही कोई और हो जो कि इतना ज्यादा इस प्लस वाले ऑपरेशन को यूज करते हैं, राइट। एवरीथिंग इज ओके। ओके, सेकेंडली कैन यू डू दैट, ये तो था ना इंक्रीमेंट, दूसरा क्या आप इसी से मिलता जुलता आप डिक्रीमेंट बाय 1 कर लेंगे आप आराम से। अच्छा, इसमें एक आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो कि मैंने नहीं की, अगर आपकी वैल्यू हो 0, यानी कि आपका इनपुट हो ऐसे, सो यानी कि जब आप पहली चीज रीड करें तो आपको रीड आप क्या करें, जब आप पहली चीज रीड करें तो आप रीड करें नल, तो अब नल को कर दें 1 से रिप्लेस, और आप मूव कर जाएं सॉरी लेफ्ट पे, राइट। सो ये वाला काम आपको एडिशनल करना पड़ेगा जस्ट टू मेक श्योर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट कंप्लीट्स एंड इट टेक्स केयर ऑफ एवरी पॉसिबल सिनेरियो। डिक्रीमेंट वाला आई एज्यूम कि आप लोगों के लिए करना इतना मुश्किल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एडिशन वाला। एडिशन शुड ऑल्सो, एडिशन भी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है, दो नॉट एज सिंपल एज दिस। सो इस साइड पे व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज, इस साइड पे इनफाइनाइट है, then you have a number over here which is separated by another number, then you have number over there, ठीक है। So this is the way we'll be talking about two words, ये मेरा first word या number है, this is my second word or my second number, right। So यूनरी में कितनी आसानी है, यूनरी में आसानी है कि the ease with unary is all you have is same letter written as many times uh, as the number is, right, and it is separated by a dollar, right। So maybe you can guess the concept is very simple, all you will do is इस पूरी स्टोरी में से if you remove this dollar, तो अगर मैं इसको a बोलूं और इसको b बोलूं, तो if I want to get a plus b, all I need to do is get rid of this dollar in the middle, and by combining both of them I will be getting a plus b, right। मैं इसकी ड्रॉ कर दूं या आप लोग बना लेंगे इसकी। ट्यूरिंग मशीन बना लेंगे आप लोग इसकी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हेन यू डिलीट दिस फ्रॉम हियर, तो आपने कर्सर को अपने यहाँ पे फर्स्ट लेटर के ऊपर आपने छोड़ना है, राइट। एंड यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ द बाउंड्री केसेस कि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, ये थोड़ा आपको एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। एज फार एज आई रिमेम्बर आपने जो ट्यूरिंग मशीन का पहला लेक्चर था उसमें
डबल एंडेड टेप का मेंशन किया था, राइट? हमारी टेप बेसिकली डबल एंडेड ही होती है, तो दूसरी साइड पे भी जा सकती है, लेफ्ट साइड पे, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग फिर ये अस्यूम कर सकते हैं कि एक स्ट्रिंग हमारा अगर हमने इनपुट के लिए दिया है तो उसके लेफ्ट साइड पे सारे के सारे नल्स हैं, और इंस्टेड ऑफ ऑलवेज यूजिंग हैश टू यू नो इंडिकेट कि हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग, हम लोग नल को डिटेक्ट करें वापस आते वक्त। जी ऐसा कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी बुक ऐसा कन्वेंशन यूज करती है, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। और ये भी कहा था कि टेप बेसिकली बोथ एंड्स पे इट्स इनफाइनाइट। अगर मैं ऐसे भी लिखूं तो मुझे समझ तो आ रही है, राइट? कर सकते हैं। बट मे बी दिस गिव्स अ मोर, क्या कह सकते हैं, मे बी क्लियरली एक चीज को बता देती है, clarity, and maybe differentiates between the starting and the ending. Although I would agree that what you're saying is perfectly right. अगर मैं ये वाली terminology भी use करूँ तो I can solve any problem. I don't need to have a specific starting letter, right? सही है, थैंक यू। नहीं भी यूज करेंगे तो no marks are going to be cut कि भाई आपने यहाँ पे क्यों नहीं यूज किया, ये तो मस्ट होता है। That's not the case. However, if it's वन साइड से अगर आप क्लोज ले रहे हैं देन यू विल नीड अ स्टार्टिंग लेटर, फिर आपको चाहिए, अदरवाइज यू विल क्रैश इनटू दिस। मतलब अगर आपने ए के साथ हैश नहीं होगा और आप ए से लेफ्ट जाएंगे तो यू विल क्रैश इनटू द एंड ऑफ द टेप, राइट? थैंक यू मैम, सही। अच्छा मेरे ख्याल से मैं एडिशन की बजाय मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाले में एडिशन वाली भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि आपने वहां पे दोनों चीजों को कट आउट भी करना है, राइट? सब्ट्रैक्शन लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। ये तो बहुत ही सिंपल है ना, यहाँ से आप रिमूव करें एंड यू आर गुड टू गो, राइट? सब्ट्रैक्शन में a माइनस b, ठीक है। अभी के लिए वी अज्यूम, ऑल्दो दिस इज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, अभी के लिए we assume that the first number is always greater than the second number. So इसका मतलब ये है, मैं as a convention I will keep on using this hash as the starting point of my string. So assumption ये है कि I am doing, let's say ये बीच का लेटर है, जीरो भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में जीरो भी यूज हुआ है, स्लाइड में भी जीरो यूज हुआ है, राइट? सो मैं क्या करना चाह रही हूँ, I want to do 3 minus 2। अब आप देखें ये हमारा जो कंप्यूटिंग का फंक्शन है कितने मजे का ये हमें बताता है। सो इट्स अ फंक्शन दैट डज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, लॉजिक इसकी ऐसी है, और आर्ग्यूमेंट्स हमें पता नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स एवरी टाइम वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आर्ग्यूमेंट। सो मैं अगर अपनी कंप्यूटिंग में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगी सम आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2 एंड आई विल बी रिटर्निंग द रिजल्ट, राइट? ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। सो दिस एक्यूरेटली मैप्स द फंक्शन दैट वी यूज, और ओवरऑल मैथमेटिक्स में भी हम इस तरह से यूज करते हैं। अब there can be multiple ways by which you can solve it. Anybody can just give me one of the solutions, how we can subtract and return the answer like I mentioned, right? Removing everything from the tape and just conveying the answer back onto the tape. जी anybody? Remove the नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा आपको हिंट देती हूँ, आपको माइनस में क्या करना पड़ेगा, दिस कैंसल्स दिस, और जो रह जाएगा दैट शुड बी द आंसर, राइट? सो 3 minus 2 का आंसर आना चाहिए 1, जब ये रह जाएगा दैट शुड बी द आंसर 1, राइट? क्वेश्चन ये है कि इनको लेट्स से मैं स्टैरिक करती जा रही हूँ, यहाँ से स्टैरिक किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया। बात ये कि इसकी हाउ विल यू लाइक क्लीन इट अप, क्लीन अप कैसे करेंगे इसको? नो नो इट्स ओके। One way could be that we keep on deleting one from here and let me change the color. That we delete this from here and this from here, right? So this from here and this from here, right? So इसमें जब ये डिलीट करेंगे यहाँ इसका मिलेगा नहीं तो हमें इसको वापस लगाना पड़ेगा, right? So we'll have to
undo one of the ones, या हम इस साइड से शुरू करें, इसमें हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा. What we do is we delete one from here and then we delete one from here, then the other from here and then the other from here. तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो whatever is left is the answer. But this will only be the case when your a is greater than b. अगर मैं आपको generic दे दूं where a minus b में से कोई भी नंबर बड़ा छोटा हो सकता है, then it may not work. Okay. So मैं आपके साथ कौन सा करते हैं, हम एक I will not be using delete वाला यूज नहीं करती, I will use a simple solution, right? और मैं बताती हूँ कौन सा. You're perfectly free to use delete as well, right? So a minus b where a is greater than b, right? Just little bit of simplification. So you start, right? And then the first thing you need to do is, मैंने जैसे भी आपको कहा, what I will do is I will skip. assumption ये है कि हम लोग, ये हैश है मेरा, यहाँ पे कुछ वंस है, डॉलर बीच में, फिर कुछ वंस है और फिर हमारे नल्स है, राइट? सो व्हाट आई वुड वांट टू डू इज, और यहाँ पे स्टार्ट है, आई वुड वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? मतलब एंड से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल 1 को 1 से रिप्लेस करूंगी, राइट पे जाऊंगी और लूप करती जाऊंगी. 1 को 1 से रिप्लेस करूंगी, राइट पे जाऊंगी, डॉलर को डॉलर से रिप्लेस करूंगी, राइट पे जाऊंगी, until I will hit a null, right? नल का मतलब है कि जब मैं नल आ जाएगा तो नल को नल से रिप्लेस करके आई विल कम ऑन द लेफ्ट, यानी कि मैं लास्ट लेटर के ऊपर आ गई. अब व्हाट आई विल डू इज, अब हमने फिर वो एक साइकिल आ जाएगा हमारे पास, राइट? बैक एंड फोर्थ वाली बात. अब हम क्या करेंगे, नल को नल से रिप्लेस करने के बाद द वन दैट आई रीड, उसको मैं खैर हम नल भी कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ द क्लटर राइट देयर. 1 को मैं नल से रिप्लेस कर दूं और मैं लेफ्ट को मूव कर जाऊं, ठीक है? एंड आई कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट, वंस को 1 से लेफ्ट until I hit a डॉलर, राइट? डॉलर इज अ सेपरेटर. डॉलर को मैंने डॉलर से रिप्लेस किया और मैं लेफ्ट पे ही गई, बट आई एम ऑन द फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर पे. व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट द लास्ट वन इनटू मैं इसको स्टैटिक में चेंज कर सकती हूँ, किसी और चेंज में चेंज कर सकती हूँ, राइट? बट आई कैन नॉट पुट नल्स इन द मिडल ऑफ माई स्ट्रिंग, राइट? सो मैं लेट्स से इसको स्टैटिक में कन्वर्ट कर देती हूँ. सो नाउ माई 1 on the extreme from the right side has been balanced by the 1 on the left side, यानी कि पहला फर्स्ट 3 का और 2 में से जो 3 लाइन्स थी और 2 लाइन्स थी, ये दोनों आपस में एक एक हम लोगों ने कैंसिल कर दी है, राइट? ओके, 1 को हमने किया स्टेरिक में एंड देन नाउ आवर जॉब इज डन. अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू रश टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिपीट द प्रोसेस, राइट? एंड देन वी विल मूव टू द राइट. ओके, सो अब हम क्या, कहाँ पे शुड आई ज्वाइन? So I think we should be joining here, right? So we should be skipping all the ones, all the dollars until we करते 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 ऐसा होना चाहिए कि जब हम होना ये चाहिए कि जब हम नल्स से नल्स पे एग्जिट वाला पॉइंट अब हमें देखना पड़ेगा. पॉइंट हमारा रहना चाहिए कि हम अब जब हम यहाँ पे आएंगे नल के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और नल के लेफ्ट साइड पे वी नो इट्स अ स्मॉलर नंबर, और जब वहाँ पे खत्म हो जाएगा, लाइक दिस इज बिकम नल एंड दिस इज बिकम स्टेरिक, सो जब नल के लेफ्ट साइड पर आएगा तो व्हाट इट विल फाइंड इज, इट विल फाइंड अ डॉलर, राइट? डॉलर को आप डॉलर से चेंज करेंगे और आप लेफ्ट पे जाएंगे, राइट? क्योंकि आपने अब अपना कर्सर, यू हैव टू लीव ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आंसर, राइट? सो आप क्या करेंगे, यू विल स्किप वंस विद वंस, कीप ऑन मूविंग टू द लेफ्ट. आपको अब वंस के अलावा यू शुड नॉट बी फाइंडिंग एनीथिंग एल्स until you start, your finishing point has to be hash. Hash को hash से replace किया and you go one step to the right. अब you should be on the first letter of your answer. It should be on the 1, right? So इसको एक बार dry run कर लेते हैं. अगर मैं जरा जल्दी से गई हूँ या इतना clear मैंने नहीं बताया, इसको भी dry run कर लेते हैं. So let's say you have simple रख लेते हैं.
2 माइनस 1 कर लेते हैं, सॉरी 3 माइनस यही करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि उसके अलावा फिर लूप में नहीं आ पाता, राइट? सो यू आर हेयर, व्हाट यू डू इज 1 को 1 से रिप्लेस किया एंड यू मूव टू द राइट. सो यू कीप ऑन स्किपिंग योर वंस एंड योर हैशेस अंटिल यू रीच अ नल. नल पे आए, लेफ्ट पर आए, the left letter has to be converted to a a null, and then you skip all the ones, keep on moving to the left, until you hit the dollar. डॉलर के फर्स्ट लेफ्ट पे जब आप जाएंगे, यू शुड बी फाइंडिंग अ 1, यू शुड बी कन्वर्टिंग, क्योंकि ये assumption है कि ये हमारा ज्यादा यहाँ पे होगा ही होगा नंबर. You convert it to steric, then your first part is done, and then you come back again extreme right, and then convert this to null, convert this to steric, and then come back here. अब आप क्या करेंगे, you will यहाँ पे when you'll come back again, you will skip all the ones, all the dollars, and come to the extreme end. अब आप यहाँ पर हैं, right? जब आप यहाँ पर आए हैं, अब आप क्या करेंगे, आप नल को नल से रिप्लेस किया, यू मूव 1 स्टेप टू द लेफ्ट. लेफ्ट पर आए तो द फर्स्ट लेटर दैट यू रैन इनटू वाज अ डॉलर. फिर आपने डॉलर, यू नो कि दिस इज द एंड, राइट? सो आपने क्या किया, oh no, we missed one thing, right? So what we need to do is we also need to convert this dollar and this these sterics into nulls. ये काम हमारा रह गया, right? So आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता. चलो ड्राई रन कर लिया मैंने. So आपका काम यहाँ खत्म नहीं होता. Basically what you will do is कि जब आप यहाँ से वापस जाएंगे और रास्ते में स्टेरिक्स तो ऐसे सोचे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट? सो जैसे ही आपको डॉलर्स मिलेंगे तो आप यहाँ पे आपको कहीं आई होप आप लोग यहाँ पे डाल सकें. यहाँ पे यू हैव टू कन्वर्ट योर डॉलर को डॉलर से नहीं, डॉलर को नल से, और जितने भी स्टेरिक्स हैं ऑन द वे उनको भी आपको नल से कन्वर्ट करके, वंस को सिर्फ करके ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेरिक्स को नल में कन्वर्ट करके, एंड देन यू हिट द राइट. उसको थोड़ा सा मे बी आप इसको रिफाइन कर सकते हैं. जस्ट लेट मी नो इफ दैट्स क्लियर. Okay, let's look at another one. Another example is आपकी बुक में तो इन्होंने ग्रेटर देन की भी की हुई है, ग्रेटर देन इक्वल की भी की हुई है. मे बी मुझे लगता है जैसे बहुत सिंपल सी हैं. यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट देम एंड इतनी बात नहीं है, और आपको प्रैक्टिस भी इसी बहाने आप लोग कर लेंगे. So what I would want to do with you right now is the concept of multiplication. मल्टीप्लिकेशन की जो मशीन है आपकी बुक में भी, बुक में, स्लाइड्स में, इंटरनेट पे, यू विल बी फाइंडिंग इट एट मेनी प्लेसेस. मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर है ना 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, हमें ये बात पता है, तो इसका मतलब है 3 हैज टू बी कॉपीड ट्वाइस, राइट? either 2 has to be copied thrice or 3 has to be copied twice, right? So हमें वो काउंट रखना पड़ता है कि हमने कितनी बार उसको कॉपी किया. Okay, I'm taking my class. Sorry because of the disturbance. Okay, 3 multiply by 2 maybe you could take a minute and you could convey how this problem can be solved, right? I'll just give you a couple of seconds. लेकिन आप लोगों ने मुझे जवाब देना है. Yes, anybody can give me the answer how we can multiply two numbers together using the unary representation.
इसको हैश कर दें जैसे मर्जी। मैम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, शायद उससे हो जाए। नो, यूनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। है डेसिमल में, डेसिमल में करेंगे क्योंकि नंबर देखे ना हमारा 3 डेसिमल में करेंगे हम लोग, राइट। ऑफ कोर्स हम इसको बाद में जाके टूज की पावर्स में और इस तरह से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो जब आप बाइनरी में होते हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन इज वेरी सिंपल, यू नो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो और सिंपल हो जाती है क्योंकि आपने बिट्स को लेफ्ट और राइट करना होता है। मैम हम इस तरह कर सकते हैं कि वी टेक द डॉलर एज द स्टार्टिंग पोजीशन और उसके राइट पे चेक करें, जब तक वो राइट पे वंस पड़े हो तो हम, बल्कि मैम लेफ्ट से चेक करते हैं कि जब तक लेफ्ट पे वंस पड़े हो तो वी कीप ऑन एडिंग टू वंस टू द राइट, टू वंस टू द राइट ऑफ द लास्ट नल। यानी पहले चेक किया पीछे वन, उसको हैश कर दिया और लास्ट वन को, और फिर मैं आगे मैम टू वंस को ऐड कर दिया नल के बाद, नल के ऊपर, फिर वापस गए दोबारा चेक किया और फिर दोबारा दो ऐड करते हैं। इस तरह बैक एंड फोर्थ कर करके हम मल्टीप्लाई कर आई सकते हैं। थिंक साद की भी, आई एग्री विद साद आंसर एंड आल्सो अब्दुल मनान आंसर। हमें ये बात पता है कि हम अगर इसको काउंटर बना लें, ठीक है, मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन का वही कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब है मुझे 2 टाइम्स स्ट्रिंग को कॉपी करना है, राइट। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी जो स्ट्रिंग है ना उसको मैं 3 पार्ट्स में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं इसको डॉलर कर देती हूँ, या लेट्स से मैं इसको लेट्स से मैं हैश हो गया, डॉलर हो गया, एक और सिंबल बना लेते हैं। कौन सा हो सकता है, एट द रेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो मैं कहती हूँ दिस इज माई नंबर दैट हैज टू बी कॉपीड, दिस इज माई काउंटर कि मैंने कितनी बार इस नंबर को कॉपी करना है, एंड दिस इज माई रिजल्ट, ठीक है। सो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यू नो मैं इसको फर्स्ट वन को कर दूं, मैं लेट्स से स्टेरिक, मैं कहूँ फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी कॉपिंग इट ओवर हियर। सो मैं यहाँ जाती हूँ, इसको करती हूँ मैं स्टेरिक, ठीक है, वापस जाती हूँ, इसको यहाँ कॉपी करती हूँ, फिर आगे आई मैं एट द रेट को स्किप किया, सारी चीज़ बीच की स्किप की, डॉलर को स्किप किया, फिर मैंने इसके बिल्कुल साथ आई जो वन मिला उसको मैंने स्टेरिक में कन्वर्ट किया और उसको यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, राइट। फिर दोबारा वापस आई, यू नो एट द रेट और डॉलर का सारा कुछ बीच का स्किप किया, स्टेरिक स्किप किया, एंड देन आई हैड वन, सो मैंने फिर वन को स्टेरिक में कन्वर्ट किया और इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। सो मेरा ये वाला वर्ड हैज बीन कॉपीड दिस मेनी टाइम्स ओवर हियर। अब क्या करेंगे, वापसी पे जाते हुए व्हाइल वी क्लीन अप, व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल यू नो रीराइट देम अगेन बाय वंस, राइट। दोबारा हम चेंज करके फिर अगली आइट्रेशन को देंगे। अब अगली आइट्रेशन क्या करेगी कि आप कहेंगे ओके दिस इज द सेकंड टाइम आई एम गोइंग टू बी कॉपिंग दिस स्ट्रिंग, सो वो दोबारा आएंगे यहाँ पे इसको करके कॉपी हेयर, and then this is this in copy here, when it is this and copy here. So maybe you can, if you assume there are 2 loops, you can assume कि this is my outer loop। हम तो कंप्यूटर साइंस वाले कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को यू नो विजुलाइज कर सकते हैं, and this is my inner loop। आपको पता है इनर लूप की सारी चीज़ें दोबारा से इनिशियलाइज होती हैं, आउटर लूप की वैसी रहती हैं। सो अगर आई बाहर हो और जे अंदर हो तो हमें पता है कि जे हमारा मतलब अगर आप वहीं से स्टार्ट करें तो हमारा जे जो है वो बार बार इट इज गोइंग टू बी यू नो मतलब उसका स्कोप थोड़ा होता है, राइट, अनलेस कि हमने उसको ग्लोबल बनाया हो तो। सिमिलरली हम इसका भी स्कोप जो है ना ये जो स्टैटिक करने का ये उसी आइट्रेशन में खत्म करेंगे, एंड वंस दैट इज डन तो हम दोबारा से इसको वंस में चेंज कर देंगे, राइट। And then there is nothing to do. You can check if you are surrounded by at the rate on one side and dollars on one side, and then you have statics in the middle and no ones are left. It means कि आपकी multiplication is complete, and this should be the answer. ठीक है, अब आप ये काम कर सकते हैं, if you want to leave a clean tape, आप यहाँ पर आए, हैश से शुरू करें, हर चीज को कन्वर्ट करते जाएं नल के साथ, ठीक है, और जब एट द रेट आए उसको नल पे कन्वर्ट करके तो आप यहाँ पे अब अपना जो टेप है छोड़ के दैट्स हाउ यू गो। does that make sense? या एक और मैं आप लोगों को करा दूं एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
This one समझ आइए, but I would good to see an example. So let's say थोड़ी सी हम ज़्यादा एग्जांपल ज़रा बड़ी ले लेते हैं. Let's say it is 4 multiplied by 2. So hash 1 2 3 4, ठीक है. And then you have let's say dollar in the middle, then 1, इसको 3 कर लेते हैं ताकि ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाए. And then you have nulls. ठीक है, ये हमारी स्टार्ट आ गई. अब मैंने वही किया, दिस इज माय फर्स्ट नंबर, दिस इज माय सेकंड नंबर, और मैं अब जो मूवमेंट है ना वो आप लोग फिर जब आप मशीन बनाएंगे आपको एक एक चीज का डिटेल का ख्याल रखना पड़ेगा. तो आप क्या करें, यहाँ पे लगाएं @ और आपका यहाँ पे मेरा पड़ा होगा रिजल्ट. सो दीज आर द 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ माय फंक्शन एंड दिस इज माय द रिजल्ट दैट आई एम गोइंग टू बी गिविंग बैक. सो आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एज अ काउंटर. ठीक है, कि मुझे 3 टाइम्स 1 2 3, मुझे 3 टाइम्स इसको कॉपी करना है, राइट. सो 1 2 3 4 वन टाइम, 1 2 3 4 1 2 3 4. अगर आप जाएं वापस अपनी ग्रेड 1 या मॉन्टेसरी में, तो दिस इज हाउ यू वर टोल्ड टू डू मल्टीप्लिकेशन, राइट. सो इतने टाइम्स ये चीज करेंगे एंड देन व्हेन यू जस्ट कंबाइन देम टुगेदर तो यू विल गेट द आंसर. हम यहाँ पे भी वो प्रिमिटिव लेवल का काम हम लोग करने जा रहे हैं. सो हम क्या करेंगे अब, what I will do is that I will keep this one as a counter. I will convert this to steric. ठीक है, go back to the left side of this dollar and start copying. Convert to steric and then copy here. Convert, sorry. इसको तो मैंने outer loop है, इसको तो मैंने touch ही नहीं करना. Convert this to steric, copy. Convert this to steric, copy. Convert this to steric and copy. Done? अच्छा, उसके बाद फिर बिफोर यू कम आउट ऑफ दिस आउटर लूप के इनर लूप में से व्हाट यू विल डू इज यू विल अनडू ऑल ऑफ इट. ठीक है, और आप उनको दोबारा जितने भी स्टेरिक्स हैं उनको आप 1 में कन्वर्ट करके देन यू विल लीव. फिर आप आउटर लूप में आएंगे, 1, दोबारा आपने 1 को स्टेरिक में कन्वर्ट किया, स्टेरिक में कन्वर्ट किया, स्टेरिक में कन्वर्ट किया और स्टेरिक में कन्वर्ट किया, राइट. And then once you're going to exit from this inner loop, you will convert again, you will be converting them back to your ones. फिर जब वहां पर आप आए, आपने ones को for every one that you see over here आपने यहाँ पे कॉपी किया, 2 3 then you have 4, right. उसके बाद when there is nothing left, यानी कि between the @ and the dollar all you have is the asterisk, it means that your job is done. And now after this add the rate, what you have is the answer. एक काम तो आप ये भी कर सकते हैं, एज अ लेजी आंसर वुड बी कि आप @ के बाद यहाँ से आप आंसर दे दें. अब ये बात तो पक्की है, जो भी रीड करेगा वो यहीं से रीड करेगा, वो आगे से रीड नहीं करेगा. बट टू बी ऑन द सेफ साइड, इफ यू डोंट वांट टू मिस आउट एनी ऑफ योर मार्क्स, आप इस पूरे को कन्वर्ट करें, हैश से शुरू करके यहाँ @ तक के सारे को आप नल में बारी बारी रिपीट कन्वर्ट करें, और आप यहाँ पे अपना मार्कर जो है यहाँ पे छोड़ें, एंड दैट शुड बी गिविंग यू द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, with this I will still want to add कि जितना ये सिंपल लगता है, मशीन उतनी सिंपल नहीं बनती है, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती है. हैविंग सेड दिस डजंट मीन कि अगर कॉम्प्लिकेटेड बनती है तो फिर बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल है. अगर आप इसको एक बार बना के फिर इसको ड्राई रन करते जाएंगे और उसमें एडिशंस करते जाएंगे तो आपकी बिल्कुल ठीक बन जाएगी. सो इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे. ठीक है, आप लोग मैं गूगल पे भी क्लासरूम पे भी पोस्ट कर देती हूँ. आप मल्टीप्लिकेशन की मशीन बनाकर लाइएगा और आप डिवीजन की मशीन बना के लाइएगा. सो ये सारी रिलेटेड हैं, और मॉड्यूलस वाली जो है, मॉड्यूलस थोड़ी सी आसान है, डिवीजन से लिंक्ड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत इनकी लॉजिक मिलती जुलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दूसरे का वो कहते हैं रेसिप्रोकल सी हैं. सो अगर आप एक बना सकेंगे आसानी से तो दूसरे को बनाना आपके लिए मुश्किल है. Point is you make it, you dry run, you update it, then you dry run, you keep on doing it until वो हर मतलब you've checked it like on 4-5 different variety of cases, right? Okay, any other question from now? Okay, I will be stopping the recording.